38 years I have spent in the powerhouse, sir. In the powerhouse? Yes, 38 Which years. powerhouse? At Chatham Powerhouse and Pune Powerhouse. 38 years. You were not transferred elsewhere? 38 years of service. I was transferred only once at Hadway. There also I have a commissioned a powerhouse. But this is a violation of transfer policy. You have given me another issue. This is a gross violation of transfer policy. How come you were not shunted out of this South Andaman district on transfer? नहीं उस टाइम का गया. इसका ये थोड़ी कि आपने 5 साल पहले छक्का मार दिया तो आज भी आपने मैच जीत लिया. आज जीतने के लिए आपको फिर छक्का मारना पड़ेगा ना. इसका मतलब थोड़ी कि 35 साल मैंने कर दिया और मैं नहीं करूंगा. फिर तो आप वीआरएस लेके चले जाइए. फिर आपको वीआरएस सैंक्शन हो जाना चाहिए. सैंक्शन आपका क्यों नहीं हो रहा? वीआरएस आपने लिख के दिया हुआ है ना. व्हाई आर दे नॉट अप्रूविंग ऑफ इट? कुछ तो वो आपको बताते होंगे ना. मैं क्या करूं सर, मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सर. मेरा तो हाथ पांव बांध के मेरे को आग का ऊपर में तोपा गया सर. नमस्कार. हॉकाई के लोकप्रिय न्यूज फीचर भंडाफोड़ में मैं श्रीनाथ वशिष्ठ आज फिर आपका स्वागत करता हूं. मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता सर. मुझे तो हाथ पांव बांधकर आग का ऊपर में थोपा गया है. लाचारी, हताशा और खौफ से भरे ये शब्द अंडमान निकोबार प्रशासन के बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता यानी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर करुणा जयधर ने लगभग 1.5 साल पहले द्वीप समूह में बिजली सप्लाई की दयनीय और असहनीय हालत पर हॉकाई के सवालों के जवाब में कहे थे. हेलो. Yes, Mr. Jayadhar. Hope you can hear me टेल now. मी सर. गुड इवनिंग. Very good evening. So, what has gone wrong? Once again, there are power cuts serially each and every day. Today there was a disturbance because of solar intermittency. There was Solar, 2-3 times great so failure. this solar technology has become a pain in the neck. मैं क्या बोलूं सर? Why is it that the department is unable to do anything about it? What are the constraints? No, all the requisite measures are being taken, but it will take time, sir. It has been taking endless time, Mr. Jayadhar. What are the steps that has been? मैं इसका बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता सर. सोलर जब बैटरी लागे, बैटरी जब लगेंगे. अभी तो इतना डिस्टर्ब हो गया ना डिपार्टमेंट, आपको तो पता है. हाँ, ये क्या हो गया था इनका अचानक से? मैं कुछ नहीं बोलूंगा सर इसके बारे में. मैं एक वर्ड नहीं बोल सकता हूँ आपको. अच्छा, वो भी नहीं बोलेंगे? My neck is on this thing, domical shoulder. अच्छा. Why so? How are you associated with that issue? मतलब डिपार्टमेंट में कुछ है सर इशू, जैसे मैं नहीं बता सकता सर आपको. अच्छा. ये तो चिंता की बात है. बहुत बड़ी. ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है ना. आप अनऑफिशियली किसी दिन हमको बताइए, so that I can hold the concerned authorities accountable for it, because something has to be done. If you are not in a position to do anything about it, neither are the IAS officers in a position to do it, then let Hawkeye do something. कभी मिलके बताऊंगा सर. कभी मिलके बताइए. तो अभी ये रोजाना कैसे हो रहा है? Current situation is such that because of the solar, there is a lot of cloud movements. Because of the cloud movements, there is same old story, Mr. John. Same story is going on, sir. जब तक इस पे बैटरी नहीं लगेंगे, 50-60 मेगावाट की बैटरी जब तक नहीं लगेगा. Cloud cover, how does cloud cover hamper? There is after the sunset. After the sunset, there is no solar disturbance. Yes, there is. After Right the now, sunset, if there is any disturbance, right now there is a power cut. Right now, if there is a power cut, then it may be some other issue. Let me find out. Oh, this is very sorry state of affairs, Mr. Jayadhar. Since morning, this is the third or the fourth time. मैं क्या करूं सर? मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सर. मेरा तो हाथ पांव बांध के मेरे को आग का ऊपर में तोपा गया सर. मैं नहीं बता सकता सर. ऐसी बात है? मैं नहीं बता सकता सर. वी आर रियली इन सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर. अच्छा. आपको पता है, सबको पता है, बट मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सर. आई एम हेल्पलेस. कुछ इशारा तो कीजिए. नहीं सर, फोन पे मैं नहीं बात करूंगा सर आपसे. अच्छा, हम समझ रहे हैं. हम आपकी सिचुएशन समझ रहे हैं. तो फिर हम किसी दिन फिजिकली कभी बाद में बात करते हैं. पर्सनली आपके ऑफिस में आएंगे और तब आप बताइएगा, है ना? ठीक है सर. पिछले दिनों हॉकाई के सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन के दौरान करुणा जयधर ने अपनी लाचारी, गैर जिम्मेदाराना रवैये और नाकामी का भरपूर खुलासा किया. उसी दौरान अंडमान निकोबार प्रशासन के बड़े अधिकारियों की एक और गड़बड़ी फिर एक बार सामने आई.
कर्मा जयधर ने हॉकाई को बताया कि उनका अपनी सर्विस के 38 साल यानी 38 इयर्स के दौरान दक्षिण अंडमान से बाहर मात्र एक बार ही ट्रांसफर हुआ। बाकी का सारा टेन्योर उन्होंने यहीं काटा है। यह इस बात का एक और प्रमाण है कि भ्रष्टाचार से बुरी तरह ग्रस्त अंडमान निकोबार प्रशासन में सरकारी ट्रांसफर पॉलिसी की किस तरह धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं, वो भी चीफ सेक्रेटरी की नाक के नीचे। 38 years I have spent in the powerhouse, sir. In the powerhouse? Yes, 38 Which years. powerhouse? In the capacity of junior engineer, assistant engineer, executive engineer at Chatham Powerhouse and Phoenix Bay Powerhouse. Chatham and Phoenix Bay? Yes. Achha. Out of my entire 38 years. You were not transferred elsewhere? 38 years of service, I was transferred only once at Hadway. There also I have a commissioned a powerhouse. But this is a violation of transfer policy? Then I am not responsible for that, na? If it is Yes. a violation of transfer policy, am I responsible for that? Yes, you have given me another issue. What another issue? This is a gross violation of transfer policy. How come you were not shunted out of this South Andaman district on transfer? उस टाइम में जो लोग थे उनसे पूछिए। बिल्कुल क्यों नहीं पूछेंगे। किया? मनोहर सिंह साहब था, क्यों नहीं किया हमको ट्रांसफर? हाँ, मैंने तो बल्कि एक बार दो बार लिख के भी दिया था कि मेरे को ट्रांसफर करो बाहर। हाँ, आपको ट्रांसफर कैसे नहीं हुआ? क्यों नहीं किया? हाँ। पूछिए आप, इन्वेस्टिगेट करिए, पता करिए। क्यों बिल्कुल नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे। You'll come to know. बिल्कुल पूछेंगे। Why I was not transferred from powerhouse? You'll come to know. ये तो ट्रांसफर पॉलिसी का वायलेशन है। ट्रांसफर पॉलिसी का वायलेशन तो one part है। हाँ। The other part is the reason why. What was the reason? Why I was kept in the same place for so many years? What is the reason? आप फाइंड आउट करिए। फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं यहाँ पता। टाइम पास करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। मुझे नहीं पता, वो तो जो ट्रांसफर नहीं किया उनको पता अरे होगा। उनको पता मिस्टर होगा। जयधर, दिस इज मुझे रियली कैसे पता होगा कि वो लोग मुझे क्यों नहीं दिस ट्रांसफर? इज रियली डिसअपॉइंटिंग। ठीक है। You have disappointed the entire territory of Andaman and Nicobar. Because I represent, when I question you on behalf of each and every resident of Andaman and Nicobar Islands. तो इससे मतलब हमारा ट्रांसफर से उसका क्या रिलेवेंस है? ट्रांसफर से रेलेवेंस नहीं है, आपके जवाब नहीं देने से रेलेवेंस है। जवाब तो मैं नहीं दूंगा, शुरू से मैं बता दिया। हाँ, तो उसको आपको मैं कोई जवाब नहीं इसको कहते हैं पलायनवादी ठीक है, मैं पलायनवादी हूँ। मानसिकता। मैं पलायनवादी हूँ। बांग्ला में बोले पलातक। ठीक है, मैं पलातक हूँ। आपको जो मतलब मेरे को देना है दीजिए। আমি আর কি বলবো? कुछ मत बोलिए। আমি তো বলবো না, বলে তো থাকবো না। आपकी मर्जी है सर। হ্যাঁ, आपकी मर्जी। আমি তো যথার্থটা বের করব, বের করে আমি জনগণের সামনে রাখবো, প্রস্তুত করব রীতিমতো। তাহলে তো আপনি এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা, আপনার তো সমস্ত কিছু জানা আছে, আপনার তো আন্দামান নিকোবরের মাটির প্রতি বেশি বেশি অ্যাটাচমেন্ট হওয়ার কথা, তাই কি না? Nobody handed over the charges of AC to me. আচ্ছা, I took over because unfortunately Bernard sir was suspended. सस्पेंडेड ऑन। And I was ordered as AC CDC. एक 1.5 साल पहले की बात है। जब आपके जेईज और एईज संभाल नहीं पा रहे हैं तो आपको तो जाना पड़ेगा ना, या 15 घंटे लोग मरने तो गर्मी में कौन बाढ़ में जाए? मेरे को क्या चक्कर है, मैं पड़ा हूँ, मेरे को डिप्रेशन है, ऐसे करके थोड़ी छोड़ सकते हैं। इसीलिए तो मैं कुछ बोला ना सर आपको। मैं भी तो 34-35 साल पावरहाउस में काम किया हूँ ना। हाँ, मैं पावरहाउस में कितना घंटा रहता था, क्या करता था, तो थोड़ा पता कर लीजिए। नहीं उस टाइम का क्या, इसका ये थोड़ी कि आपने 5 साल पहले छक्का मार दिया तो आज भी आपने मैच जीत लिया। आज जीतने के लिए आपको फिर छक्का मारना पड़ेगा ना। देखिए हर एक इसका मतलब थोड़ी कि 35 साल मैंने कर दिया और मैं नहीं करूंगा, फिर तो आप वीआरएस लेके चले जाइए, फिर आपको वीआरएस सैंक्शन हो जाना चाहिए। सैंक्शन आपका क्यों नहीं हो रहा? वीआरएस आपने लिख के दिया हुआ है ना, व्हाई आर दे नॉट अप्रूविंग ऑफ इट? कुछ तो वो आपको बताते होंगे ना। shortage of engineers in the department. Shortage of engineers in Iran, that is shameless, in fact shameful about the administration's policies. सर उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। I didn't ask you a question, I just commented. My VRS was not accepted on the ground that there is a shortage of engineers in the department. How long is it for you to get retired? Another 5 months. Another 5 months. तो 5 महीने में एडमिनिस्ट्रेशन इंजीनियर्स की शॉर्टेज पूरी कर लेगा। उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं। हम ये उनसे पूछ रहे हैं, केशव चंद्रा से। अंडमान के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स की कमी है तो 5 महीने में पूरी कर लेंगे, इसलिए आप उनको वीआरएस नहीं दे रहे हैं कि ये तो उनका प्लेट का नहीं था ना। हैं?
ये तो उनका पीरियड का नहीं था। उनकी पीरियड का नहीं हो, जवाब तो उनको देना है। ये तो 2 साल पहले की बात है ना, हाँ 1.5 साल पहले की बात नहीं तो आपने उनको अभी तक बताया नहीं वीआरएस के लिए, फिर आपने परसों नहीं किया है। थर्ड टाइम भी लिख के दिया था मेडिकल ग्राउंड, तो वो इन्हीं को लिख के दिया होगा। उस टाइम ये नहीं था, जीतन नगर। तो उसके बाद इनको आपने लिख के नहीं दिया, आपने छोड़ दिया फिर? नहीं, 3 बार आप जब मेडिकल ग्राउंड में अप्लाई किया नहीं हुआ, हाँ। उसका पहले भी एक बार मेडिकल ग्राउंड में अप्लाई किया नहीं हुआ। ये तो गलत बात है। ये तो उसके बाद में फर्स्ट टाइम आई अप्लाइड ऑन हाँ दिस थिंग हाँ कि 30 इयर्स हो गया मेरे को, हाँ। कंडीशन ठीक नहीं, हाँ। तो ऑल द टाइम्स आई हैव अप्लाइड ऑन मेडिकल ग्राउंड ओनली। तो मेडिकल ग्राउंड में तो आपका जेन्युइन ग्राउंड आज है। जो मेरा हेल्थ कंडीशन इतना खराब है ना, हाँ। दिस इज बिकॉज 34-35 इयर्स आई हैव स्पेंट इन पावर हाउस। पावर हाउस में काम करने के लिए ना, पावर हाउस विल एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यू because you are working, you don't have Sunday, you don't have Saturday, you don't have a holiday, you don't have night, ना रात है ना दिन है ना संडे है ना मंडे है ना हॉलीडे है ना छुट्टी है ना कुछ है, because 24 hours you are on the job. 24 hours? Yes. How's that possible? 24 hours you are on the job. How's that possible? 24 Over hours? telephone, yes, over telephone you are monitoring, you are doing everything, you are asking, you are managing the grid. 24 घंटा 24 घंटे तो कोई नहीं करता। पावर प्लांट में अगर आपको काम करना है, Is it do you really mean to say that it is humanly possible? It is not possible, but it will have to be made possible. 24 hours आप बिना Yes. सोए काम कर सकते हैं? Not बिना सोए. हाँ 24 hours you are responsible. That sense of responsibility is driving you. वो अभी भी होनी चाहिए। अभी भी नहीं है करता, आपको कैसा मालूम? आपको तो पता नहीं जनरेशन कितना, बता ही नहीं पा रहे। हम तो सब पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा आपको पता है लेकिन आप बता नहीं रहे। अच्छा अंडमान निकोबार प्रशासन की ट्रांसफर पॉलिसी कहती है कि सामान्य परिस्थितियों में लिटिल अंडमान, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप को छोड़कर बाकी के दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान जिलों में सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग सिर्फ 3 साल की अवधि के लिए की जानी चाहिए। उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार लिटिल अंडमान, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में 2 साल और कार निकोबार, कैंपबेल बे, नानकौरी, कमोटा, कचाल, टेरेसा, चौरा और लिटिल निकोबार के इलाकों में ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों की पोस्टिंग 2 साल, जबकि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की 1 साल के लिए ही की जानी चाहिए। इसके अलावा जनहित से संबंधित जरूरतों के लिए कर्मचारियों की तैनाती किसी जगह पर अधिक समय के लिए की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अनुमति आवश्यक होगी। साथ ही किसी भी सरकारी कर्मचारी की तैनाती सामान्यतः किसी एक कार्यालय में 5 वर्ष से अधिक नहीं की जानी चाहिए और संवेदनशील विभागों तथा जनता के साथ लेन देन से संबंधित कार्यालयों में 3 साल से अधिक समय के लिए किसी की भी तैनाती नहीं की जानी चाहिए। इसके बावजूद अंडमान निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों में ट्रांसफर पॉलिसी के इन नियमों, दिशा निर्देशों और यहां तक कि आदेशों का उल्लंघन भी आम बात हो चली है। उदाहरण के तौर पर हॉकाई ने कई बार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र और दक्षिण अंडमान के पूर्व और वर्तमान उपायुक्तों से सवाल किया है कि सचिवालय के ट्रांसफर ऑर्डर्स पिछले साल अक्टूबर के महीने में जारी हो जाने के साल भर बाद भी पोर्ट ब्लेयर तहसील के उनके चहेते रेवेन्यू इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और पटवारी निलय रॉय को आज तक रिलीव क्यों नहीं किया गया? उनकी जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। इसी प्रकार विद्युत विभाग में भी इस वर्ष मई के महीने तक भी ट्रांसफर ऑर्डर्स जारी ही नहीं किए गए थे, जबकि अनेकों कर्मचारी स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कारणों से ट्रांसफर के इंतजार में दूर दराज के द्वीपों में चिंतित बैठे हुए थे। हॉकाई ने जब अधीक्षण अभियंता करुणा जयधर से पूछा तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं 1 अक्टूबर के बाद आपसे बात करूंगा, 1 नवंबर के बाद। 1 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अच्छा तब मेरे को आप कुछ भी क्वेश्चन पूछिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के A to Z एरिया एल्बिट टू कैंपबेल बे। 1985 में मैं ज्वाइन किया था, 1985 से लेके 2023 तक कुछ भी क्वेश्चन पूछिए मैं जवाब दूंगा। आपकी परिस्थिति है, हम समझते हैं,
लेकिन हमको तो जवाब आपसे आप ही से लेना है। और तब मैं ये भी पूछूंगा, आपको भी ये समझना तब चाहिए। मैं ये भी पूछूंगा वशिष्ठ साहब अभी पावर पोजीशन कैसा है? हाँ, जैसी आप छोड़ के जाएंगे वैसी होगी। चला तो आप ही रहे। तो मेरा हालत भी तो ऐसा है ना, जैसा मैं मेरे को जैसा जैसा हाँ। प्रेडिसेसर छोड़ के गया था। बिल्कुल बताइए, हम तो यही जानने आए हैं प्रेडिसेसर क्या करामात करके गया है, कौन करके गया आप भी तो है। है का लोकल है, आप भी सब इसीलिए तो पूछ रहे हैं भगत सिंह जी के साथ साथ, का नाम लिया है ना। इसीलिए तो पूछ रहे हैं मेरा भगत मुझसे अब क्यों सिंह, सुनना इसीलिए तो होगा? पूछ रहे हैं भगत सिंह जी के सारे केसेस सॉल्व हो गए, मुझे नहीं पता भगत सिंह सेटल हो गए। कैसे से ऐड होंगे, इसीलिए तो पूछा हमने मुझे नहीं पता। कि कौन प्रेडिसेसर क्या करके गया है, क्या नहीं करके गया है। अजीत बर्नाड का ही बता दीजिए, 6 प्रेडिसेसर आपके इमीडिएट प्रेडिसेसर उनका ही बता दीजिए। अजीत बर्नाड भी क्या करेगा? सस्पेंड कर दिया रिटायरमेंट से एक दिन पहले, ऑन द पेनल्टीमेट डे ऑफ हिज रिटायरमेंट। सस्पेंशन क्यों हुआ वो भी एक मैटर ऑफ दिस थिंग। हाँ, सस्पेंशन होना चाहिए। क्या थी वजह आपको नहीं मालूम? अगर पूछेंगे पावर सिचुएशन कैसी है तो सीधा जवाब हमने अभी दे दिया आपको, जैसी आप छोड़ के जा रहे हैं वैसी पावर सिचुएशन है। क्या मतलब ये है जैसा वो लोग छोड़ के गया था नेचुरली, और आप भी तो थे उनके साथ में, Why you are blaming me? खाली वो लोग छोड़ के थोड़ी गए थे, आप भी थे उनके साथ Only में। one part. हाँ, 35 साल 38 साल आप बता रहे You see हैं my- वहाँ पावर हाउसेज में थे। मेरा पावर हाउसेज में तो आई वाज नॉट एज द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ना, हाँ। बोला ना फ्रॉम द लेवल ऑफ जूनियर इंजीनियर। हाँ। जेई था, यही था उस टाइम में। मेरा क्या हैसियत है कि जूनियर इंजीनियर का क्या हैसियत होता है? जो हैसियत होती है, I'm talking हैसियत होती है। जूनियर इंजीनियर का कोई हैसियत नहीं होता है, उसको खाली 24 घंटा काम करना पड़ता है। जूनियर इंजीनियर की पोजीशन को बिलिटल मत कीजिए, मैं बिलिटेड नहीं कर रहा हूँ, वो एक मतलब किसी के सामने डिग्निफाइड पोजीशन है। आप तो कोई भी बात को कैसा भी घुमा देते हो। आप नहीं, बात आप बोलने क्या हैसियत है आप बोल रहे थे, ये हैसियत इन द है ना? सेंस, हैसियत अच्छी खासी है। इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजन हाँ। एंड डिपार्टमेंट का जो स्कीम बनता है उसमें जूनियर इंजीनियर का कोई रोल नहीं रहता ना। पॉलिसी मैटर्स में क्या पॉलिसी मैटर में होगा? जूनियर, वही बात मैं कर रहा हूँ हाँ। कि विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी मैटर्स एंड डिसीजन हाँ। जेई का क्या रोल है? कुछ नहीं है, हाँ। कोई हैसियत नहीं है जेई। बिकॉज़ जेई आर द पिलर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, मुझे पता है। हाँ। मैं खुद जूनियर इंजीनियर रहा। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। जूनियर इंजीनियर द पिलर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। हाँ। एनी डिपार्टमेंट को खास करके टेक्निकल डिपार्टमेंट का पिलर्स होता है। हमारे पास कुछ शिकायत आई थी ट्रांसफर को लेकर के, आपके ट्रांसफर्स अभी तक क्यों नहीं हुए? सारे डिपार्टमेंट्स के हो गए हैं, अभी हमको याद आया। आपको ट्रांसफर लिस्ट अभी तक ड्राफ्ट ऑर्डर बन गया। ड्राफ्ट बन गया, तो कब वो अप्रूव हो रहा है, कब वो ऑर्डर हो रहा है? End of this month. व्हाई सो लेट? Because I am running shortage of 47 junior engineers in the department. Those who are हाँ। working in the outside, हाँ। अगर उनको मैं पोर्टल लेके आता हूँ, हाँ। I have to send somebody there also ना। तो I am हाँ। इतना शॉर्टेज लेके मैं कैसे चलाऊँ? नहीं तो शॉर्टेज तो जितने लोग जहाँ हैं वहीं उसी में आपको चलाना है, उनको आप यहाँ रखो या वहाँ रखो, उससे तो शॉर्टेज का कोई कंसर्न नहीं है। क्योंकि इधर में एक जूनियर इंजीनियर 2 3 चार्ज लेके बैठा हुआ है ना शॉर्टेज। हाँ, तो वहाँ से लाके उनको दे दीजिए, इनको रिलीव कर दीजिए। तो बोलने के लिए तो आसान है। नहीं, लॉजिकल तो वही है ना। एवरी पोस्ट हैज गॉट नहीं, इट इज देयर राइट टू बी ट्रांसफर्ड दैट वे, इज इट नॉट? आप कुछ लोगों को आप जानबूझ के वहाँ बरसों तक रखेंगे, जैसे आप 35-38 साल तक यहाँ पावर हाउस में थे, साउथ अंडमान से बाहर आप नहीं गए हैं, वैसे ही दूसरों को वहाँ नारकोंडम में रखेंगे आप उसके लिए मेरे को क्यों? या कैंबल पे नहीं, हम आपको मैं अगर 35 साल से पोर्टर में हूँ, am I responsible for that? I'm not responsible for that. पॉइंट की बात बता रहे हैं, आई एम नॉट होल्डिंग यू रिस्पांसिबल फॉर दैट। बार बोल रहे हैं ना आप जैसा बाहर नहीं गया, हाँ। आप ऐसा कि हमें जानबूझ के नहीं, वो तो फैक्ट है, आप नहीं गए, आप ही ने बताया। मुझे फिर भेजा नहीं गया तो मैं नहीं गया। हाँ, तो ऐसे ही आप उनको नहीं भेज रहे हैं वहां से यहाँ, क्यों नहीं भेज रहे हैं? हम आप से पूछेंगे ना, जैसे आपको क्यों यहाँ से बाहर नहीं भेजा गया, हम आपके ऊपर वाले से पूछेंगे। वैसे बाहर जो अभी नारकोंडम में है या दिगलीपुर में कहीं और है, उसको आप मान लीजिए 8 साल 10 साल 20 साल से कोई अगर वहाँ है, अगर 20 साल से कोई है तो 20 साल पहले उसको यहाँ लाना चाहिए ना। 20 साल से अगर कोई है तो 20 हाँ। साल से क्यों है उधर? क्यों है? आप बताइए ना। अगर 20 साल पहले कोई इधर में गया था, हाँ। तो जब 17 साल होने का टाइम है, मतलब 3 साल में उसका तो हो जाना चाहिए था टेन्योर कंप्लीट। हाँ। तो एक्स्ट्रा 17 साल वो क्यों रहा? वो ऐसे ही है जैसे आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना कि इतने साल से क्यों है। अभी आपका ट्रांसफर ऑर्डर अभी तक हुआ नहीं है, इस मंथ के एंड में होगा, मतलब इसका बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के हो गए। तो दैट मीन्स देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, मिस्टर जॉयदेव। ट्रांसफर पॉलिसी इज सपोज देयर आर ऑर्डर्स। एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिफॉर्मिटी के बारे में मैं कैसे बता? नहीं, हम तो आपके डिपार्टमेंट की पूछ रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट का हो रहा है। इतनी देर से क्यों हो रहा है?
है कुछ रीजंस? वही तो वो रीजन तो Shortage है, shortage of रीजन staff. तो होंगे, शॉर्टेज Shortage of staff है, shortage of नहीं, staff is- ट्रांसफर करने से शॉर्टेज थोड़ी पूरी होती हाँ, है। नहीं होता है। फिर क्योंकि एक कैम्बल वे से एक मजदूर को या एक इलेक्ट्रिकल फिटर को मैं लाके पोर्टर का हाँ। रिक्वायरमेंट और कैम्बल वे का रिक्वायरमेंट सेम नहीं होता है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट शॉर्टेज कहाँ आपकी दूर हो रही है आप ट्रांसफर नहीं करने से? शॉर्टेज थोड़ी दूर हो रही है। शॉर्टेज तो जहाँ है वैसी है, जहाँ की तहाँ है। शॉर्टेज रिमेन्स द सेम। तो ये कहना कि शॉर्टेज है इस वजह से हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये तो ग्राउंडलेस है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? आपने तो बोला। मैं ये बात नहीं बोला कि नहीं कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ ना, हो गया ना, ड्राफ्ट ऑर्डर इशूड हो गया जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्ट ऑर्डर हैज इशूड, अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आएंगे। ये करीब 2 महीने की देर क्यों? बाकी सब डिपार्टमेंट्स के हो गए, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के 2 महीने से क्यों? आपकी यूनियन की भी कंप्लेंट है, हमको लगता है आपके जो एम्प्लॉयज की यूनियन है ना, हमको लगता है उनकी भी कंप्लेंट है। हु इज आंसरेबल फॉर दैट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? That's the No, I'm reason. not getting your point. You're not getting my point. That's the reason why the state of affairs in the department. हो सकता है। If the SC himself is not able to get the point, then who else will? मेरा थोड़ा कमजोर है ना दिमाग। ये दुख की बात है और मजाक की बात है। आप मजाक कर रहे हैं, ये मजाक इस सीट पे बैठ के, खास तौर पे जब मीडिया सवाल कर रहा हो तब शोभा नहीं देता। आपको सीरियसली और जिम्मेदाराना तरीके से नहीं, मुझे मेरा सीरियस है, जिम्मेदारी आपसे सीखने का कोई जरूरत नहीं है, हमसे सर। सीखने नहीं, आप तो तब से सिखा रहे हैं मेरे को, मेरा जिम्मेदारी है, मेरा हमने serious- सिखाया होता तो उसका जवाब हम अपने तरीके से लेते। तो लीजिए लीजिए। हाँ, हमने अगर आप चाहते सिखाया क्या होता। मेरे से? आप चाहते क्या मेरे से? हमने- What do you want from me? जिम्मेदारी आप क्योंकि बार-बार मेरे को आपका मेरा जिम्मेदारी का एहसास मुझे है, मुझे आपसे जिम्मेदारी का अगर एहसास आप- लेने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मिस्टर जायदर, अगर आपको जिम्मेदारी का एहसास है तो हमको ये बताइए ना कि किस वजह से ट्रांसफर्स आपके नहीं हुए इतने दिन से। बताऊंगा। आपको नहीं बताएंगे? नहीं। तो ये फिर गैर जिम्मेदाराना ठीक है। है, गैर जिम्मेदार हाँ। मैं गैर जिम्मेदार हूँ। फिर आप चिढ़ते क्यों हैं? आप चिढ़ा रहे हैं मेरे को। हम तो आपको जो है आप वो बोल रहे हैं, अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप गैर जिम्मेदाराना है, मैं हूँ। इररिस्पांसिबल है। ठीक है, हूँ। तो यू शुड नॉट बी हेड अप बिकॉज ऑफ दैट। अब तो तब से लेकर आपको बौखलाना नहीं चाहिए। यू आर किलिंग माय टाइम। आई एम किलिंग योर ऑफ टाइम, कोर्स यू आर किलिंग माय यू आर किलिंग माइन। आई say डिड that कॉल also. यू ना, डिड आई कॉल यू? You don't need to call me. देन आप खुद आए हो। मीडिया आएगा, आपको अकाउंटेबल होल्ड करेगा। आप यहाँ अपनी मनमानी बैठ के नहीं कर सकते। मैं कोई मनमानी नहीं कर रहा हूँ। मीडिया आएगा, मीडिया आएगा, आप बुलाएं या ना बुलाएं, आपसे सवाल करेगा, मैं तो नहीं रोका ना आप जवाब दें या न दें, मीडिया अपना काम करेगा। यू कैन नॉट स्टॉप मीडिया फ्रॉम डूइंग देयर जॉब। आप पूछते रहिए सर। कैन यू? आप पूछते रहिए ना सवाल। पूछ लिया हमने। पूछिए और पूछिए और आप 1000 आपके क्वेश्चन जो जिम्मेदाराना जवाब दिए वो भी हमको मिल गए, जो गैर जिम्मेदाराना जवाब दिए वो भी हमको मिल गए। वो सब जनता के पास पहुंचेंगे, जैसे के तैसे पहुंचेंगे, आप देखना। दिस शोज दैट थिंग्स आर नॉट न्यूट्रली डन इन दिस डिपार्टमेंट अंडर योर लीडरशिप। देयर इज पार्शियलिटी। दैट इज व्हाट इट स्मेल्स ऑफ अनलेस यू आंसर। हो रहा है, लेट हो गया। लेट क्यों हो गया? क्यों होगा? There has to be some reason ना। अरेंज करने में लेट होता है। देयर इज शॉर्टेज, यू हैव टू सी सो मेनी थिंग्स। There are so many issues because of that. You see, people have to suffer like anything because of these delays due to whatever तो डिले तो 2 reasons. महीने से हुआ ना। इसके पहले जो जिसका अगर 6 साल किसी का कोई जगह में हो गया ना, तो 6 साल होने से 3 साल का बाद में या सदन ग्रुप में अगर है तो 1 साल का बाद में उसको ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, मतलब 5 साल पहले ही ट्रांसफर हो जाना चाहिए। हाँ, हाँ। उस टाइम में क्यों नहीं? हाँ, तो उसका जवाब तो जिसको देना है उससे मेरा देंगे। पीरियड में 2 साल का डिले, 2 महीना का डिले हो गया तो मैं यानी इम्पार्शियल हो गया हूँ। पार्शल है, इम्पार्शल नहीं। मतलब Partial. पार्शियल हो गया, मैं हाँ। पार्शियल हो गया हूँ। तो बिकॉज़ देयर इज अ डिले अप टू 2 मंथ्स ऐसा ही तो लगता और है। देयर इज अ डिले ऑफ 5 मंथ्स बाय माय You see, it is your responsibility to treat all the employees, all the subordinates equally. As per आपको किसने कह दिया कि मैं equality नहीं as per करता हूँ? law, as per rules and regulations of the government of Again you are India. teaching me. No, Again you are teaching me. you feel like that because you are insecure. ये आपका गलत फहमी है क्योंकि आप इनसिक्योर फील करते हैं। मैं क्यों इनसिक्योर फील क्यों करूँ? ये तो आप भी जाने। मैं नहीं कर रहा हूँ ना। कर रहे हैं आप। ये तो आप बोल रहे हैं ना। आप बोलने से सब कुछ नहीं होता ना। हमको समझ में आ रहा है, आपको तो बहुत कुछ समझ में आएगा। सबको बहुत कुछ समझ में आता है। आपको तो बहुत कुछ समझ में आता है। सब आपको भी तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। आप बच्चों की तरह बात कर रहे हैं मिस्टर जादव। इस तरह से एक क्लास में गजेटेड ऑफिसर बात नहीं करता। बहुत सीरियसनेस के साथ, बहुत ग्रेविटी के साथ, बहुत फोर थॉट के साथ।
बात करते हैं। चलिए, नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच फॉर द कप ऑफ टी एंड थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी। There is nothing personal. There is never anything personal when Hawkeye interacts with anyone on professional terms. Right? Thank you. Wish you all the best. Take care. हॉकाई ने जब इस वर्ष मई के महीने में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता करुणा जयधर से उनके विभाग के कर्मचारियों के ट्रांसफर ऑर्डर्स जारी न होने के विषय में जवाब तलब किया, तब जाकर अंडमान निकोबार प्रशासन ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के इस वर्ष के ट्रांसफर ऑर्डर्स जारी किए। अपनी अथक छानबीन के माध्यम से लगातार निर्भीक पत्रकारिता करते हुए हॉकाई ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि अपनी अजीबोगरीब जन विरोधी कारगुजारियों और फैसलों से द्वीपवासियों के लिए नित नई समस्याएं खड़ी करने वाले अंडमान निकोबार प्रशासन के नौकरशाहों की लापरवाही के कारण द्वीप समूह में बिजली का इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया कि ये नौकरशाह इसे दूर ही नहीं कर पा रहे हैं। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इतने सालों से रोजाना बिजली पानी की बेतहाशा कटौती झेलते जा रहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पीड़ित आइलैंडर्स निश्चित रूप से इस यातना का करारा जवाब देने के इंतजार में हैं, जिसका खामियाजा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को बाकायदे भुगतना पड़ेगा। क्यों? कि उनके नेता द्वीप समूह में तमाम परेशानियां और प्रशासन के नौकरशाहों का सौतेला बर्ताव झेलते द्वीपवासियों के हक के लिए लड़ने के बजाय बराबर नौकरशाहों के तलवे चाटते नजर आए। भंडाफोड़ के अगले संस्करण में आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभकामनाओं सहित नमस्कार।